A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. My dear class 8 students, have you all revised this chapter, Reaching the Edge of Adolescence? In today's part, we will be discussing the NCERT question and answers. So let's get started. So, what is the term used for secretion of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? जल्दी बताइए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं जो कि हमारी बॉडी के चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? वेरी गुड, इट्स हॉर्मोन्स. नेक्स्ट इज डिफाइन एडोलेसेंस. व्हाट इज एडोलेसेंस? कैन यू टेल मी? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस सेवरल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं. रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है. बेसिकली इट indicates the reproductive maturity. It is called as adolescence. The time period is normally 11 years to 19, but it can vary from person to person, right? Next is, what is menstruation? Explain. चलिए समझते हैं. हमें पता है menstruation फीमेल में होता है, right? क्यों होता है? Because ओवरी से ओवम रिलीज होता है. Okay? It will wait for fertilization. If it is not fertilized तो क्या होगा? It will come to the uterus and the lining of the uterus degenerate, through which the blood flows, which is called as menstruation. ठीक है? So, in females the ova or egg begin to mature with the onset of puberty, that is 10 to 12 years of age. One egg get matured is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days, जिसे कि menstrual cycle बोलते हैं. Duration is 28 to 30 days. During this period the wall of the uterus become thick so as to receive the fertilized egg for the implantation to carry the baby. यूट्रस रेडी हो जाती है ना. इन केस इट इज फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइज होता है तो क्या होगा? इट बिगिन्स टू डेवलप एंड रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी. अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, इफ द फर्टिलाइजेशन फेल्स टू टेक प्लेस, द ओवम एंड द रिलीज्ड एग एंड द थिक एंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. ओके, जिसकी की वजह से ब्लीडिंग हैपन्स इन वुमेन विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन. Okay, it occurs once in 28 to 30 days में once it happens. Next is list changes in the body that takes place at puberty. So many changes are there, boys and girls. Some changes are common, some are different. Okay, so there is sudden increase in height in both boys and girls. Okay, and both reach their maximum height at the age of 17 to 18. The voice of boys become hoarse, है ना, और गर्ल्स का क्या होता है? श्रील, हाई पिच्ड वॉइस हो जाता है. और शोल्डर ब्रॉडर होता है, मसल्स ग्रो होते हैं बॉयज़ में. गर्ल्स में क्या होता है? वेस्ट वाइडर होता है. हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. इन मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है? पिंपल्स आते हैं, एक्ने होते हैं, स्वेटिंग होती है. ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स चेंजेस इन secondary sexual characteristics in both male and female. Like boys and girls become capable of reproduction. Reproductive maturity होती है. In girls menstruation starts and different types of hormones starts to release, initiating a reproductive function. Right? Next आता है, prepare a table having 2 columns depicting the names of endocrine gland and hormones. Easy, right? Pituitary gland, growth hormones. Ovaries, estrogen. Testes, testosterone. Thyroid, thyroxine. Pancreas, insulin. And adrenal gland, adrenaline. You have to remember this कि कौन सा endocrine gland कौन से hormone release करते हैं, right? Next is, what are sex hormones? Why are they named so? State their function. अभी हमने पढ़ा, right? Sex hormones क्या हैं? जो secondary sexual characteristics को control करें, right? So they are named so because they control sexual activities and secreted in both males and females, but by different organs and different hormones. Like sex hormone के क्या function होते हैं? Male sex hormone जो कि होता है testosterone, it is released by or secreted by testes and it causes changes in secondary sexual characteristics like production of sperm या फिर mustache, beard growth, stimulates spermatogenesis यानी कि formation of sperm. And female sex में sex hormone क्या होता है? Estrogen. ये क्या करती है? मैमरी ग्लैंड के डेवलप में हेल्प करती है, ओवम ओवरी के रिलीज मैच्योर होने में हेल्प करती है. इट ऑल्सो मेंटेन्स प्रेगनेंसी, राइट?
Next is choose the correct option. Adolescent should be careful about what they eat because अच्छा एडोलेसेंट को क्यों केयरफुल रहना चाहिए अपने डाइट के बारे में? प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन बढ़ाने में हेल्प करती है, या फिर प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, ग्रोथ के लिए चाहिए, या फिर एडोलेसेंट फील हंग्री एट द टाइम, भुक्खड़ होते हैं इसीलिए चाहिए, या फिर टेस्ट बर्ड्स आर वेल डेवलप्ड, या फिर ऐसे ही कुछ चटपटा खाने का मन करता है इसीलिए, किस लिए? बिकॉज ग्रोथ पीरियड है इसीलिए. देन रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन, आपको कैसे पता चलेगा कि वुमेन में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हुआ है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब, या फिर व्हेन ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, या फिर बॉडी वेट इंक्रीज होता है, या फिर हाइट इंक्रीज होता है. मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स. वेरी गुड. नेक्स्ट इज द राइट मील फॉर एडोलेसेंट. क्या खाना चाहिए एडोलेसेंट्स को? चिप्स, नूडल्स, कोक? टेस्टी नहीं. चपाती दाल वेजिटेबल्स, राइस नूडल्स बर्गर, वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक. क्या चाहिए हमें? तो बैलेंस डाइट खाना चाहिए जो कि है चपाती दाल एंड वेजिटेबल्स. सी आवर आंसर्स आर करेक्ट. ओके. नेक्स्ट राइट नोट्स ऑन. पहला होता है एडम्स एप्पल. क्या होता है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉयज़ के वॉइस चेंज होते हैं और उनका जो वॉइस बॉक्स होता है वो ग्रोज इन साइज. ओके, इंक्रीज इन द साइज ऑफ वॉइस बॉक्स, या फिर जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं, उनके वॉइस क्या हो सकते हैं? वॉइस ब्रेक्स. और वो जो ग्रोथ होता है उसे क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल बोला जाता है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी सर्टन चेंजेस होते हैं, उसे हम क्या करते हैं जिसकी वजह से मेल और फीमेल में जनरली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉयज़ में फेशियल हेयर लाइक मुस्टेक एंड क्या और बियर्ड के ग्रोथ को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी. पता है कैसे? समझाओ यहाँ भी कैसे होता है. देखो और एक बार समझा रहे हैं. ठीक है, मेल के पास ऑप्शंस होते हैं. क्या क्या ऑप्शन? या फिर एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम. राइट, ये है मेल के पास. ठीक है, फीमेल के पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो एक्स, राइट, या फिर वही एक्स, है ना. फीमेल के पास क्या क्या होते हैं? ये है मेल, उसके पास है एक्स एंड वाई. फीमेल के पास क्या है? एक्स एंड एक्स. राइट, तो चॉइस किसके पास है? इसके पास. अगर x और x जुड़े तो क्या बनेगा? हमारा गर्ल. अगर y और x जुड़े क्या बनेगा? बॉय. तो सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय बॉयज ओनली, मेल. और फालतू में ही औरत को गाली देते हैं सब, है ना. तो हमारे पास कितने पेयर्स के क्रोमोसोम हैं? 23 पेयर्स. ओके, पी लिख रही हूँ, इसमें नहीं हो रहा है हैंड राइटिंग. ओके, जिसमें से 22 आर ऑटोसोम 22 पेयर्स और 1 पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स हैं. और गैमेट्स जिसे हम बोलते हैं जर्म सेल्स. ठीक है, तो ये पेयर हैं. राइट, ये पेयर हैं जो कि हमारे फीमेल के पास XX होते हैं और मेल के पास XY होते हैं. तो इसी तरह जब हैप्लॉइड आएंगे ना, सब हाफ हो जाएंगे ऑर्गेनिजम्स नहीं, गैमेट. राइट, गैमेट क्या होगा? हैप्लॉइड आएगा. तो फीमेल से या तो X आएगा या फिर X आएगा, मेल से या तो Y आएगा या फिर X आएगा. राइट, तो डिपेंड्स ऑन कौन सा स्पर्म. ओवम इज सेम. राइट, तो कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा? अगर X वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो इट विल बी ए गर्ल. राइट, अगर Y वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो इट विल बी अ बॉय. लाइक दिस वी कैन determine the sex of a unborn baby. Understood? Okay. Now next is, ये है हमारा पजल. सी प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज, उसे हम क्या बोलते हैं? जो ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल. राइट, ये देखो ये है एडम्स एप्पल. देन ग्लैंड्स विदाउट डक्ट क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना. कहाँ गया? ये रहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स. देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स अटैच टू ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इट्स पिट्यूटरी. नेक्स्ट इज सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बोलते हैं हम? हॉर्मोन्स. पेनक्रियाटिक हार्मोन क्या बोलते हैं हम? पेनक्रियाटिक हार्मोन को इंसुलिन. देन फीमेल हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन. राइट, मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड सिक्रेट्स थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड.
अनदर टर्म फॉर टीनेज क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट, राइट? एडोलेसेंट बोलते हैं ना हम। कहाँ गया? ये रहा, ये। नेक्स्ट इज हार्मोन रीचेस हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम। कहाँ पे पहुंचते हैं? टारगेट साइट में ना, टारगेट साइट में। नेक्स्ट इज वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स बोलते हैं। कहाँ गया? ये रहा लैरिंग्स। देन टर्म्स फॉर चेंजेस एट एडोलेसेंट क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं, राइट? अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ओके। ओह, इरेजर आ गया, 1 second. Next. So with this we have completed all the questions. So now quotes time. It's always the small pieces that make the big picture, है ना? पजल देखा है? पजल तो उसमें क्या होता है? एक छोटे छोटे पीस को हम जोड़ के एक बड़ा सा पिक्चर बनाते हैं। लाइक दैट आपके छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटे छोटे वर्क, हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, है ना? ओके। So with this I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you.